بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لینگویج کو، اردو کو اور انگریزی کو، جب آپ ایک نئی کلاس میں، ہمارا اس وقت ٹارگٹ خاص طور پہ چھٹی آن ورڈ کے بچے ہیں کو انٹروڈیوس، ایک دفعہ ری انٹروڈیوس کیسے کروانا چاہیے تاکہ بچہ لینگویج کے ساتھ کنیکٹ ہو۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلیں جی پہلا سبق نکالیں اور پہلا سبق شروع کر دیں اور اس کے پڑھنا شروع کر دیں اور کے الفاظ کے معنی شروع نہیں۔ پہلے بات ہوتی ہے آمادگی، کہ کیا ہم نے اس بچے کو اس سبجیکٹ کی خوبصورتی دکھائی ہے، اس سے اٹریکٹ کروایا ہے۔ تو چلیں ہم اس پہ آتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا، یہ اوپر والا پارٹ ہم نے اردو کے لیے جس برین سٹارمنگ کی ہے کہ یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جس طرح میں کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تو اس کو فن دکھانا ہے ہم نے کہ یہ کتنا خوبصورت جرنی ہے، اس کے ہیرو اور ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، کیوں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی چیز میں اس وقت تک انٹرسٹ نہیں لیتا، دلچسپی نہیں لیتا جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ یہ واٹ از ان اٹ فار می، میرے کیا کام آئے گا زندگی میں، اس کی کیا دوسرا اہمیت ہے۔ اور ہم جو کریں گے، جو اگلے 5-6 مہینے بچہ ہمارے ساتھ سفر کرے گا، ہم اس کو ٹور کہتے ہیں، جو ٹور کرے گا وہ ٹور عام پڑھنے سے بہت ڈفرینٹ اور انجوائبل ہے۔ یہ چیز اسے شروع میں بتانی چاہیے کہ آور ٹور ہیز ٹو بی ٹوٹلی ونڈرفل۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فن آتی ہے نا، تو بچوں کو، اکثر بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ یار قومی ترانہ آپ بتائیں، قومی ترانے میں کوئی اردو کا ورڈ ہے؟ تو بچے کہتے ہیں قومی ترانہ تو سارا اردو میں، نہیں میں کہتا ہوں پھر ایک لفظ اس میں اردو کا ہے، تو دین دے ٹرائی فگرنگ آؤٹ، اور پتہ انہیں نہیں چلتا کہ صرف کا اردو کا ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اردو میں تو زیادہ تر الفاظ باہر سے آئے ہیں، تو باہر سے کہاں سے آئے ہیں؟ اردو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اردو کو پہلے کیا کہتے تھے؟ ریختے بتا سکتا ہے؟ تو نہیں بچوں کو پتا ہوتا، کیونکہ بچے صرف الفاظ میں نے۔ تو اب چھٹی کلاس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، یا چھٹی سے لے کر یہ کسی وقت بھی سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے 11ویں 12ویں میں، اردو کا معنی لشکر ہے، ٹھیک۔ پھر اردو کے ہم اس کو خوبصورتی بتائیں، جیسے میں نے یہ چیزیں جو مجھے اٹریکٹ کی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے۔ غالب کے بارے میں اس کو کچھ بتائیں، غالب کی کوئی انٹرسٹنگ سے شعر سنائیں۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور طرز بے دل میں ریختی کہنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ میر سے انٹروڈیوس کروائیں، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو میر، غالب، یا جس طرح اس قسم کی سٹوریاں اسے سنائیں کہ جیسے غالب نے کہا کہ یہ میرا سارا دیوان لے لیتے، یہ ایک شعر مجھے دے دیتے تو مجھے فائدہ ہو جاتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسی بات تھی نا اس شعر میں۔ ہمیں جس شعر نے 9ویں 10ویں میں بڑا انسپائر کیا تھا، تو ٹیچر نے اس کو طرح ایکسپلین کیا، کفس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ یہ جو مکھی ہے نا شہد کی، اس کو باغ میں نہ جانے دیجیے، وہ باغ میں جاتی ہے تو پھول چوستی ہے تو نیکٹر پہ لیتی ہے، واپس آتی ہے تو چھتا بناتی ہے تو کینڈل بنتا ہے، کینڈل بناتی ہے تو اس کو آگ لگتی ہے تو وہ پھر پروانہ مر جاتا ہے، تو اس کو باغ میں نہ جانے دو۔ تو اتنی لمبی، یعنی کہ کفس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو وہ کازل ریلیشن شپ، تو وہ یہ لینگویج کے فن ہیں اور پن ہیں جس وجہ سے پھر یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں عام طور پہ ہم جو عام بندہ جو بازار میں بول رہا ہے اسٹریٹ میں، وہ ٹھیک لینگویج نہیں ہے، اور ہمیں ایک ڈیسنٹ شائستگی زبان سے آئے گی، وہ شائستگی ادب زبان سے آئے گا۔ ہم کلفی پڑھتے ہیں، ہے کفلی، ہم انشاءاللہ کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، لکھنا اس طرح چاہیے، وہ غلط ہے۔ ہم بیڑا اٹھانا کہتے ہیں، لفظ بیڑا اٹھانا ہے۔ تو ہم یہ چیزیں ساری ذرا نفاست سے سیکھیں گے، یہ اسے بتانا چاہیے۔ اور پھر میں کیوں کر رہا ہوں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اسی قسم کے اسکرپٹ میں ہے، اردو بھی اسی میں ہے۔ ہم زولو ٹرائب میں کہیں پیدا ہوتے تو ان کا کوئی اسکرپٹ ہی اور ہوتا۔ تو قرآن میں صرف 500 سے کم الفاظ ایسے ہیں جو اردو فیملی سے تعلق نہیں رکھتے۔ مثال الحمد للہ رب عالمین، یہ سارے میں سمجھ رہا ہوں، حمد اردو میں بھی ہے، رب عالمین رحمان رحیم۔ ایا کا پہلا لفظ آتا ہے جو اردو کی فیملی میں نہیں ہے، ٹھیک۔ انعمتا آتا ہے، دالین آتا ہے دلالت، آگے پھر ذالی کا پہلا لفظ آتا ہے۔ تو ایسے 500 الفاظ ہیں جو، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اردو ٹھیک آتی ہے نا، تو میں ڈھیر سارے قرآن کی ووکیبلری مجھے آ جاتی ہے، تو مجھے اسلام کی سمجھ اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اصل میں تو عربک اور انگلش کے بغیر، عربک اور پرشین کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں اردو کی وجہ سے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا، جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ کتاب رکھی ہے یا پڑھی ہے، یا جیسے ہمارے صدر صاحب پڑھ رہے تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کم نہ تھے، کرو بیاں، یہ لفظ کروبی تھا، کروبی بنے مقدس فرشتے۔ تو اس قسم کی بگ ٹائم غلطیاں ہم کرتے ہیں، بیکاز وہ ہم اس کو سبق کو امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں، اور پھر ہم کیسے ڈفرینٹلی کریں گے وہ اسے اس میں سمجھ ہی آ جائے گا کہ کیسے ڈفرینٹلی کریں گے۔
अदब हमें किस तरह लाइफ से, जीस्ट से कनेक्ट करता है, और इस किस्म के शेर सुनाए। जैसे मुझे अपनी याद है, अब मैं तो साइंस स्टूडेंट था, जफर आदमी उसको ना जानिएगा चाहे जितना हो साहिब फहम व ज़का, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही। तो वो सारी, ये जितना हंगामा ज्यादा होगा आदमी उतना ही तनहा होगा। हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन हम अकेले रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं तो हम कनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ कैसे नई सोच चली। और शायर चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी शायरों के लिए, बिअय्यद ही रूहुल कुद्स, कि या अल्लाह ताला इनकी रूहुल कुद्स से मदद कर। तो जो काम के शायर है ना, जो इकबाल है, जफर अली खान है, मौलाना रूम है, ये बाकी वो शायर हैं जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से वो इट्स गिवन टू देम, राइट। तो हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह हर लैंग्वेज में, चाहे वो, अब हमारे पास चूंकि इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे रहे हैं और कॉलोनाइज होने की वजह से, इंग्लिश का भी इसी तरह है। इसके हीरोज, इसका फन, इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं और हम किस तरह डिफरेंटली इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो इंग्लिश की हमने मिसालें थोड़ी सी इधर नीचे ली हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में हमें पहले तो पता नहीं होता कि इंग्लिश बच्चों को नहीं पता, वर्ड जैसे उर्दू लश्कर से आया, तो इंग्लिश भी एंग्लो और सेक्सन से आया है। आजकल सेक्सोनिया जो है प्रेजेंट डे जर्मनी में फॉल करता है, ठीक। तो अंग्रेजी इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, कोई और ट्राइब से जिनके आके बनी है, ठीक। अब बच्चे को नहीं पता होता कि इंग्लैंड और यूके दो डिफरेंट चीजें हैं। यूके में तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड चारों शामिल है। तो ये बता देना चाहिए ताकि उसके जनरल नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि वोकैबुलरी, जनरल नॉलेज, दे गो टुगेदर। इंग्लिश कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी एब्जॉर्बेंट है। मतलब फ्रेंच नहीं है एब्जॉर्बेंट, फ्रेंच अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं और बाहर का लफ्ज आराम से फ्रेंच में नहीं एब्जॉर्ब होता। इंग्लिश हर लफ्ज को एब्जॉर्ब कर जाती है, ठीक, जैसे वो हम आगे जिक्र करेंगे। और देखें ना, बड़े बड़े जो लोग हैं, इकबाल जैसे, उन्होंने जो बच्चों के लिए स्टोरियां लिखी हैं, पहाड़ और गिलहरी, बकरी और गाय, मकड़ा और मक्खी, लपे आती है बच्चों की दुआ, अंग्रेजों से ली हैं, एमरसन से ली हैं और दूसरों से ली हैं। लेकिन उन्होंने समझा कि इतना खूबसूरत मैसेज है तो मैं अपनी कौम को अपनी जुबान में क्यों ना ट्रांसलेट, अपनी जुबान में इज इंपॉर्टेंट। कुरान कहता है ना कि हमने आपको अपनी जुबान में दिया। उर्दू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अपनी जुबान में हम सोचते हैं। फिर हमें, क्योंकि हमने दुनिया भर से कम्युनिकेट करना है, तो हमें ट्रांसलेट करना, उसमें करना आना चाहिए। तो इसलिए ये जुबान भी आनी चाहिए और अच्छे लेवल की आनी चाहिए। और 2, 3, 4 जुबानें तो हर बच्चा सीख सकता है, और सीखने की बेस्ट उम्र है पहले 5, 6, 7 साल। बाद में भी इंसान सीख सकता है, बट थोड़ी सी कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। लोग, हर बंदे की कैपेसिटी एक जैसी होती भी नहीं है जुबान को उस लेवल पे सीखने की। आइंस्टाइन ने बड़ी कोशिश की थी, आइंस्टाइन को नई जुबान नहीं आती थी, ठीक। अदरवाइज आइंस्टाइन एक मतलब सिंबल है ना इंटेलिजेंस। तो लेकिन हमारी फंक्शनल लेवल की और इंजॉयबल लेवल की अंग्रेजी तो हम ये बच्चे को बता सकते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया भर का ये जो इंटरनेट का नॉलेज हमारी जेब में है, वो हमारे पास यूट्यूब और फलाना, ये तो अंग्रेजी में वो बात कर रहा है। हम टेक टॉक में कैसे सुनूंगा? अंग्रेजी में सुनूंगा। मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों पे वो अंग्रेजी में आएगी, मेरे लिए जो चीज़ आएगी। तो मैं दुनिया के नॉलेज से मैंने अगर कनेक्ट होना है तो आई हैव टू बी इन इंग्लिश। चाहे मैंने वेल्डिंग सीखनी है, चाहे मैंने कैलीग्राफी सीखनी है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो ठीक है। और दुनिया के हिसाब से जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजिशन पे हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वोकैबुलरी। दे हैव अ वेरी वेरी गुड वोकैबुलरी। तो इसलिए वर्ड जितने हमें आते हैं, जितना हमारे पास जखीरा है, उतनी हमारी थिंकिंग, ये दीज आर व्हीकल्स फॉर थिंकिंग, तो उससे ना हमारा जीके ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे इस देखो, उर्दू में होता है ना देखो, तो अंग्रेजी में उन्होंने लफ्ज देखो बनाया। लेट्स हैव अ डेको एट इट, आओ इसको देखते हैं, जरा इसका जायजा लेते हैं। धोती हमारे से उन्होंने ले लिया, नवाब। तो जबानों में ऐसे ऑस्मोसिस होता है, एक दूसरे से मिलजुल के। इशूरिया राय, उन्होंने एक फ्लावर का नाम रख दिया हुआ है नेदरलैंड्स में, ठीक। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे ये मैडम आई एम एडम, तो इधर से भी पढ़े तो मैडम आई एम एडम होता है, मैडम आई एम एडम। तो इस किस्म के पैलिंड्रोम्स जो दोनों तरफ से होते हैं। कॉलटेक्स मुझे नहीं पता था, और किसी जमाने में 8वीं 9वीं 10वीं किसी ने बताया कि ये कैलिफोर्निया और टेक्सास से बना है। कैलिफोर्निया और टेक्सास अमेरिका में रियासतें हैं। तो इस किस्म के पोर्टमांटोज, पोर्टमांटो मीन्स बॉक्स, जो ऐसे बंद हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए। मॉनसून, जैसे हमने कहा, मौसम से आया है। ब्लूटूथ, कोई नेदरलैंड का बादशाह था जिसका नाम था ब्लूटूथ, उनकी जुबान में उनका नाम और होगा, बट ब्लूटूथ। उसने चूंकि इर्द गिर्द की रियासतों को आपस में कनेक्ट किया था, तो हमारी ब्लूटूथ डिवाइस ये करती है कि एक डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है, तो उसने उसके ऑनर में उसका नाम रख दिया। तो हर लफ्ज के पीछे एक स्टोरी है ना। इंडिया और इंडस में कुछ चीज कॉमन होगी ना, हमें कोई नहीं बताता। तो मुझे याद है मेरी डिक्शनरी में, मेरे पास जो छोटी सी डिक्शनरी होती थी, उसमें सबसे लंबा लफ्ज होता था फ्लॉक्सी नॉसी नी ही ली पीलीफिकेशन। उसमें 11 आईज होते थे। तो मुझे दिस वाज द लॉन्गेस्ट वर्ड। लॉन्गेस्ट वर्ड इस वक्त कौन सा है, ठीक, तो पता होना चाहिए। स्कुलन, नोमिनो, अल्ट्रा, कोई एक लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें 48 है। तो इस किस्म का हम उसको फन दिखाएंगे ना, नॉट जस्ट, तो उसी पर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे और फिर इसके हीरोज के साथ कनेक्ट करना,
मैं अपने लिमिटेड, क्योंकि आई एम ए साइंस स्टूडेंट, जो लिटरेचर में हमारे टीचर्स हैं ये हमने उनके लिए किया है। आई एम पार्ट ऑफ ऑल आई मेट, मैं जिनसे मिला हूं मैं उनसे लेता रहा हूं, तो मैं उन्हीं से, मैं मेरे अफकार असल में वो हैं। टेनिसन ने कहा है, मार्क ट्वेन की चीज़ें बताएं कि डोंट क्वारल विद द पीपल जो आपको, दे विल ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल एंड दे विल डिफीट यू विद देयर एक्सपर्टीज। बेवकूफ़ों के साथ ना झगड़ो, वो आपको उसी अपने लेवल की बेवकूफ़ी पे ले आएंगे, और चूंकि उनका तो बेवकूफ़ी में और इस किस्म की चीज़ों में तजर्बा बहुत ज़्यादा है, वो आपको डिफीट कर देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो शेक्सपियर ने सुनाए, वर्ड्सवर्थ के उन्हें बताएं, शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि ये बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो है, 6ठी से 8वीं तक उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन 9वीं से 12वीं का बच्चा फिर ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये चीज़ें असल में तो 5वीं से 8वीं इज़ द टाइम पीरियड व्हेन वी शुड, जब काफ़ी सारी उसको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, बट इस पीरियड में भी पढ़ सकता है। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज इज़ द रेसिपी फॉर हिम। मुझे याद है मैं एडगर एलन पो परलेस बक पढ़ता था, समहाउ किसी लाइब्रेरी में गया, मुझे पसंद आई, तो वो आप 5-6 सफ़े की स्टोरी पढ़ सकते हैं उस बहाने, और रेड रेड के पढ़ते थे, मतलब रींग रींग के, तो उसमें से कई अल्फाज देखने पड़ते थे, पर लेकिन दोबारा पढ़ते थे, इट वॉज इंजॉयबल एक्सपीरियंस। तो लफ्ज़ों की बतानी चाहिए, गूगल पे उसको लॉग इन करके बताएं, अच्छा कोई लफ्ज़ बताएं, तो मैं ये लफ्ज़, उसमें एनाग्राम आ रहा होता है कि ये लफ्ज़ कब इसने पकड़ा है, करेंसी कब से इस्तेमाल हुई है, स्काइप लफ्ज़ है कहाँ से आया, कब आया और कब से ये बना था, ठीक है, ये कई लफ्ज़ से आया होगा ना। तो ये उन्हें फिर लफ्ज़ों को के साथ खेलने की, और लफ्ज़ों की एसोसिएशन मेमोरी एसोसिएशन से होती है, एसोसिएशन की और लफ्ज़ों की, फैमिलीज की और लफ्ज़ों के पीछे जो नॉलेज और स्टोरी है उसकी आदत पड़ जाएगी। उसकी आदत पड़ गई तो बस दैट्स ऑल। फिर वो एक लफ्ज़ आएगा ना पैरासीटामोल, तो शी विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार पैरासीटामोल की कहाँ से आया, पैरा का क्या मतलब होता है, पैरामेडिकल का क्या मतलब होता है, पैराशूट का क्या मतलब होता है, समझ आई। तो एक लफ्ज़, तो हमने वो तरीका, वो आगही देनी है कि इट्स अ फन। तो ये बात है, और ये हमें असूल पता होना चाहिए कि रीड 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 एक ही तरीका है। लैंग्वेज में फ्लुएंसी, एक्सपर्टीज होनी चाहिए खूबसूरती लेवल की, रीड 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 से ही आती है। और राइटिंग कम्स विद राइटिंग। साइकिल की मिसाल है, मैं साइकिल पे बैठूंगा तो मैं साइकिल चलाऊंगा, मैं रोजाना या हफ्ते में 2-3 दफा लिखूंगा 10-15 मिनट, जो भी मेरे ख्यालात हैं, चाहे मैं गलत लिखूं। ये हमेशा हम गलतियां करते हैं, बच्चा पहले रिड़ता है, फिर गिरता है, रिड़ता है, गिरता है, फिर रिड़ता है। तो इसी तरह हमें उसको फ्लो करने देना चाहिए, चाहे उसमें गलतियां, तो उसकी राइटिंग आती है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चूंकि आप अंग्रेजी के टीचर हैं या आप उर्दू के टीचर हैं, तो कोई तो चीज थी ना जिसने आपको इंस्पायर किया था, कोई तो उस्ताद था ना जिसने आपको अच्छे 2 शेर सुनाए थे, राइट, रिकॉल दैट। और वो शेर या उस टाइप के शेर, उस किस्म की चीजें आप आज कलेक्ट करें और बच्चे को सुना कि आज मैंने बच्चे को इंस्पायर करना है। अपनी स्टोरी सुनाएं, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई है, दीज आर द थिंग्स व्हिच अट्रैक्टेड मी टू दिस एंड आई टेंड टू फाइंड अ बुक एंड रीड इट। और मुझे कोई नया लफ्ज आता है तो आई गेट पीक्ड बाय क्यूरियोसिटी कि यार ये लफ्ज कहां से आया, पहले तो मुझे एटिमोलॉजी देखूं, ठीक, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इज इट द राइट थिंग टू, राइट वे टू स्पीक इट। तो ये है, इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, चाहे उसमें 2-3 पहले पीरियड्स इंट्रोड्यूस में लग जाएं, फिर हम कहेंगे कि जी वो कैसे करना है, वो अगला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड इट अप्लाइज टू एनी सब्जेक्ट। मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं तो व्हाट इज द फन इन फिजिक्स, हु आर द हीरोज इन हिस्ट्री, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, हाउ इट रिलेट्स टू माय लाइफ एंड हाउ वी आर डूइंग इट डिफरेंटली विद मच मोर एंजॉयबल एक्सपीरियंस। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक।